I think we'll wait 2 more minutes so that other will join, then we will start. And it is request to all, please do not share irrelevant things in the group, okay? So I have shared hexavalent model. Initially, I discussed this. Some students are joining. Good morning, sir. Yes, good morning. We will start now. Uh, I think there are 4 students. Okay. So basically, I have discussed hexavalent model because now I think your exam will start very soon. I mean, so no, this is second year, right? फॉर्म भराया है क्या Yes, sir. सेकेंड ईयर का? Okay, we will discuss hexavalent model today. I have already discussed the assumptions on 31st May, I think. Okay, because then after that I have not taken class. Okay, because June was vacation. Now again we are in July. Today is 5th July. Okay, so I think there are Shivam Kumar is left. Shivam is there. Okay. Please inform to others so that other are joining. There are 4 students. Okay. My screen is visible. Is it दिख रहा है factor endowment and Yes, Hexer-Ohlin sir. theory? So अभी we will discuss about Hexer-Ohlin theory. इससे पहले भी हमने आपको डिस्कस किया था. अभी भी ज्वाइन का रिक्वेस्ट आ रहा है क्या? ओके. सो कोई भी स्टूडेंट एक जो है अटेंडेंस स्क्रीनशॉट रख लीजिए. ठीक है. फैक्टर इंडोमेंट एंड हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को कि वी आर डिस्कसिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है क्या? वी आर इन इंडिया. इफ वी do trade with USA or let's say other country, then it is called international. You call someone joining. Wait. Mohit Khan. Mohit Khan. Okay. Now there are 6 students. Okay. What about others? ऑनलाइन भी आप लोग नहीं आते हैं. करते क्या हैं आप लोग भाई? I think it should be more than 10 students, but 60% are there. Okay. So I'll continue. We have discussed Hexer-Ohlin theory. Today I will elaborate this theory. Earlier we have explained briefly the assumptions of this theory. Okay. Basically this theory is very important theory of international trade. Now, if we talk about gains from trade, it means one, if there are two nations, if there are two countries, then if there is trade, then there should be some benefit. Okay, mutual benefit. If there is no benefit, then there is no point of trading. Okay. So Hexer-Ohlin's theory says that there are two types of country. One is labor abundant country, another is capital abundant country. So the country which is labor abundant, जिसको लेबर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, that country can trade, uh, that that country can trade that commodity which is based on labor intensive technique. Okay. In other hand,
the other country which is efficient in capital, which has sufficient capital, that country can use capital intensive technique. बेसिकली मैं यह कह रहा हूं कि आप लोगों को कि अगर दो तरह का कंट्री है, दो तरह का नेशन है, एक को पूंजी पर्याप्त मात्रा में, कैपिटल पर्याप्त मात्रा में, पैसा पर्याप्त मात्रा में, तो वो कंट्री जो है क्या मशीनरी गुड्स मतलब कि प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उसके यहाँ कैपिटल ज्यादा है। कैपिटल ज्यादा, कैपिटल पूंजी के आधार पे जो आधारित जो वस्तु है उसका वो प्रोडक्शन करेगा। और जो इसके अदर एंड है, जिसके यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो यूज हो रहा है, जिसमें प्रचुर मात्रा में श्रमिकों लेबर का जरूरत होता है, वो फिर अब अगेन, तो जो जो लेबर का जरूरत होगा वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। ओके, तो अब ये कहता है कि दिस इज द एजम्पशन, और इससे फायदा क्या होगा, गेन्स फ्रॉम ट्रेड ये होगा कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाला है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके और कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, देखिए प्रोडक्शन के बाद की बात होती है। प्रोडक्शन के बाद अपना कंजम्पशन के लिए वो गुड्स कुछ रखेगा, उसके बाद बाकी सेल करेगा। तो वो जो सेल करेगा अदर कंट्री को, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट्स करेगा। तो कंट्री ए है या कंट्री बी है, तो दो कंट्री है। एक कंट्री आपका जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, और दोनों उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद एक दूसरे ट्रेड करता है। तो ट्रेड करने का बेसिस क्या है, ट्रेड करने का बेसिस है अपने कंजम्पशन के लिए वो सामान रख के बाकी वो ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसी को ये कॉम्प्लिकेट करके लिखा गया है। ठीक है, बात इतना ही है। नाउ देयर आर 7 स्टूडेंट्स। वो अभी क्लास लेते समय अगर किसी का कॉल आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सो अगेन माय स्क्रीन इज विजिबल। अगेन वेट, आई हैव टू शेयर अगेन, फिर से शेयर करना होगा। ज्योति कुमारी, ओके, screen is visible now. My screen is visible. Yes, sir. Okay, so we have already discussed about assumptions, so I am just showing this assumption हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, these are the assumptions, दो कंट्री होना चाहिए, दो कमोडिटी होना चाहिए, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लेबर कैपिटल। और जो बात मैं सिंपल वे में बताया हूँ उसी को यहाँ पे थ्योरेटिकली इंग्लिश में लिखा गया है, आप उसको फोकस करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हो यही रहा है कि दो दो कंट्री है, दो कमोडिटी है, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उस ये चीज आपको मतलब एजम्पशन रखना पड़ेगा। और टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर और कैपिटल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कंट्री लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहा है, दूसरा कंट्री कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहा है। दोनों टेक्निक यूज करने के बाद क्या कर रहा है, कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के बाद क्या कर रहा है, कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के बाद कंजम्पशन के लिए अपना कुछ पार्ट रख ले रहा है अपने कंट्री के लिए, उसके बाद बाकी को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट करने से क्या हो रहा है, जो दूसरा कंट्री है वो उस कमोडिटी का प्रोडक्शन या तो नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, तो उसकी पूर्ति वो वहां से कर ले रहा है। क्योंकि एक बार की बात है, जब हमारे यहाँ भी पल्स का प्रोडक्शन घट गया था, तो हम लोग जो है दूसरे कंट्री से पल्स हम मंगाए थे। ठीक है, तो जबकि हमारा कंट्री जो है पल्स प्रोडक्शन में बहुत आगे है, हम दूसरे जगह सेल करते हैं। लेकिन एक बार की सिचुएशन है, जब तूर दाल, जिसको कि यहाँ पे राहर या अरहर बोलते हैं, उस तूर दाल का प्राइस बहुत ज्यादा हो चुका था, जो कि एक डिस्कशन का विषय था। तब जाके हमारे कंट्री जो है इंपोर्ट किया गया था। तो वो एक सर्टेन फेज की बात है। लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ नॉर्मल बात करेंगे कि आखिर में गेन्स फ्रॉम ट्रेड, दो कंट्री को गेन कैसे होता है,
एक अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, और उससे दोनों बेनिफिट होता है, एक दूसरे को जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। तो उससे जिसको जिस वस्तु की कमी है वो वस्तु उस कंट्री से मिल जाता है, ठीक है। अर्थात अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाला कंट्री है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वाला सामान उसके यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो वहां से परचेज कर लेगा। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, और उस कंट्री के लिए वो चीज कहलाएगा एक्सपोर्ट। अगर आप अपना सामान विदेश में बेचते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर अपना सामान विदेश से खरीदते हैं तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली बोथ कंट्री डू एक्सपोर्टिंग, ओके। एंड एक कंट्री का एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री का इंपोर्ट कहलाता है, ठीक है। सिंपल है। अब जो है, अब देखिए, ये सारे एजम्पशंस को ब्रीफली डिस्कस किया है, वो आप अपने डिटेल में पढ़ लेंगे। उसको मैंने पहले ही बताया था सारे एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो बेसिकली ये 10-11 एग्जाम्पशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम थ्योरी को आगे बढ़ा पाए। अब देखिए, आप देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना हुआ है, ये फिगर 5.2 आप देखेंगे। एक कंट्री नेशन वन जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, इसलिए उसका झुकाव जो है एक्स एक्सिस पे ज्यादा है। दूसरा कंट्री जो है लेबर इंटेंसिव ना होके वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करता है, इसीलिए उसका जो एरिया ज्यादा जो है नेशन टू का वो वाई एक्सिस पे ज्यादा है। इस तरह से ये दिखाने का टेक्निक है। देखिए, हम कोई चीज को डिस्कस करते हैं, जैसे हम अगर इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, अगर हम कोई इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, तो वो हम एक लॉजिक या एक चित्र के रूप में हम उसको डिस्कस करते हैं, जिससे कि वो डायग्रामेटिकली जो है आपको बात को भी समझना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन या ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे क्यों बना रहे हैं भाई। एक आकार ऐसा था, एक ऐसा था, खींच दिए। बट अगर उस चीज को आप अंडरस्टैंडिंग करके बनाएंगे तो आप उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही किया गया है। देखिए, इस ग्राफ के बारे में बताया गया है। ये शेप ऑफ प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑफ नेशन वन एंड टू है। द प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑफ नेशन वन इज फ्लैटर एंड वाइडर देन द प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑफ नेशन टू, indicating that nation one can produce relatively more of commodity X than nation two. The reason for this is nation one is L. L means labor abundant nation and commodity X is L intensive commodity. जिस प्रकार नेशन वन एल अबंडेंट नेशन है और कमोडिटी एक्स जो है एल इंटेंसिव कमोडिटी है, उसी प्रकार नेशन टू जो है वो के अबंडेंट नेशन है और कमोडिटी वाई जो है वो के इंटेंसिव कमोडिटी है। तो इस तरह से ये चित्र बताया गया है कि आप उस चीज को समझ पाए। अब आगे आया है इलस्ट्रेशन ऑफ हेक्सर-अर्लिन थ्योरी। हेक्सर-अर्लिन थ्योरी बता रहा है कि दो कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाद हमें ट्रेड कैसे करें, उस बात को वो बता रहा है। तो उसी में इन्होंने इंडिफरेंस कर्व का मदद लिया है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इसमें बोलता है नेशन वन इज द एल अबंडेंट नेशन एंड बोथ नेशंस आर सेम टेक्नोलॉजी। कुछ क्वेश्चन है सर? एक क्वेश्चन है, एसेम्पशंस ऑफ द थ्योरी ही में पढ़ा रहे हैं। हाँ? क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? बोले सर हाँ। एसेम्पशन ऑफ द थ्योरी ही में पढ़ा रहे हैं, ये कंफर्म होना चाह रहे हैं सर आपसे। नहीं, एजम्पशंस जैसे मान लीजिए, एजम्पशंस में डिटेल में 11 एजम्पशंस है, उसको डिटेल में आप लोग देख लीजिए, मटेरियल में शेयर कर दिया हूँ, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो एजम्पशंस ये कहता है, जैसे मान लीजिए हम अभी क्लास ले रहे हैं, खाली टीचर रहेगा तो क्लास होगा? क्लास के लिए एजम्पशंस क्या है? टीचर भी होना चाहिए, स्टूडेंट भी होना चाहिए। उसी तरह से ये ट्रेड के लिए एजम्पशंस है कि दो कंट्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए पूरा विश्व में एक ही कंट्री रहे तो दूसरा कोई ट्रेड करेगा? तो वो एजम्पशन दिया है कि देयर शुड बी टू नेशंस। फिर बोलता है दो नेशन रह के क्या करेगा? एक को मान लीजिए एक व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा मान लीजिए क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है। अगर दो तरह का कमोडिटी का नीड होगा तब तो होगा दोनों में ट्रेड। तो उसी लिए उस तरह का एजम्पशंस रखा गया है
कि भाई ये एजम्पशंस होगा तभी ये थ्योरी वैलिड होगा। अगर एजम्पशंस ही नहीं है तो वो थ्योरी वैलिड नहीं होगा। उसी का वो एजम्पशंस मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हम ये बता रहे हैं कि 10 एग्जाम्पशंस है, जिसे मेन मेन एजम्पशंस वही है कि दो कंट्री हो, दो नेशन हो, दो सेम टेक्नोलॉजी हो, हाँ, उसके बाद देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद और जो मोबिलिटी हो फैक्टर का, और उस तरह से आपका 10-11 एजम्पशंस है। तो वो एजम्पशंस का आपको देख लेना है, नो ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट, ठीक है। उस एजम्पशंस का डिटेल्स आपको ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, उससे आप देख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि उस एजम्पशंस के बाद आगे क्या होगा। आगे हम ये बता रहे हैं कि दो कंट्री है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करता है। तो वो दोनों के बीच जब आपसी ट्रेड होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, वो हम बता रहे हैं इस ग्राफ में, जो कि आपका फिगर 5.4 है। फिगर 5.4 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखिए नेशन वन जो इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है वो ए पॉइंट है, नेशन टू जो टच कर रहा है ए डैश पॉइंट है। मतलब दोनों का ये मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब उतना के बाद ये दोनों जो है आपसी ट्रेड करता है, ठीक है। जब ट्रेड करना शुरू करता है ये, तो मान लीजिए ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो गया उसका, उसके बाद एक दूसरे से ट्रेड करता है। ट्रेड करने के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा ग्राफ जो है वो E इज इक्वल टू ई डैश, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि मतलब आपस में ट्रेड करने के बाद वो इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां हो जाएगा। उसका मतलब दो आपस में बैलेंस हो गया, दो जितना सामान बेचना था और खरीदना था वहां पे जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसी ग्राफ को क्लियर ये बताया है फिगर 5.4 हेक्सर-ओहलिन मॉडल। इंडिफरेंस कर्व वन इज कॉमन टू बोथ प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑफ नेशन at point A and tangent to production frontier of nation 2 at A dash. This define the no trade equilibrium relative commodity price of PA, comparative advantage in commodity X and nation 2 in commodity Y. With trade, मतलब ट्रेड होने के बाद see the right panel, nation 1 produce at point B by exchanging X for Y, reaching point E. X reaches point E dash. So both nations gains from trade because they consume on higher indifference curve. तो अब ये कह रहा है कि पहले जब ए डैश पे ट्रेड नहीं कर रहा था, जब ट्रेड करने लगा तब दोनों हायर इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा। क्योंकि क्यों रहेगा, जैसे मान के चलिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास व्हीट है, ठीक है, या आपके पास बासमती राइस है, लेकिन आपके पास ये समझ लीजिए कि आपके पास राइस है लेकिन कोई जो है पल्स नहीं है, मान लीजिए। तो पल्स जिसके पास है उससे ले आए, तो आपको राइस और पल्स दोनों मिल गया। तो इससे क्या होगा, आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ गए कि दो कमोडिटी हो गया, गेन फ्रॉम ट्रेड हो गया जिस चीज की आवश्यकता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ मान लीजिए राइस है लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलेगा। पेट्रोल डीजल भी मिल गया और राइस भी मिल गया, तो यू आर हैप्पी, यू विल बी ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। उसी ग्राफ को वो ग्राफिकली बता रहा है कि एट ई इज इक्वल टू ई डैश इक्विलिब्रियम, जो कि दो ग्राफ देखेंगे, पहले इंडिफरेंस कर्व 1 और 2 खींचा है, तो बाद में बोलता है जब ट्रेड करने लगता है तो आदमी हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाता है, जो कि ई इज इक्वल टू ई डैश पे है। ओके, तो ये ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है, दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सर तीन ग्राफ ग्राफ में पाएंगे। हाँ कंफ्यूजन है, ये हाँ, सर क्या दोनों ग्राफ कंफ्यूजन, में कौन सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। हाँ क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि सर जैसे कि नेशन 2 और नेशन 1 दोनों में है सर। हम्म, तो दोनों रहेगा ना जी। अच्छा ये बताओ, शादी अगर होगा तो लड़का लड़की दोनों का होना जरूरी है ना। यस तो उसी सर। तरह से कंट्री दो अगर ट्रेड करेगा तो नेशन 1 और नेशन 2 होगा। नेशन 1 का झुकाव नीचे है, नेशन 2 का झुकाव ऊपर है। नेशन 1 के पास लेबर बहुत ज्यादा है, भारत जैसा कंट्री है, मान लो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, पोटैटो प्रोड्यूस कर रहा है बहुत संख्या में। अभी देखो वर्ल्ड कप जीता, देखो मुंबई में कितना आदमी आ गया। कोई ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो उतना आदमी आता है। तो यहाँ क्या नहीं। है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, ऐसे समझिए।
अगर लेबर ज्यादा है तो क्या करेगा, लेबर का उपयोग करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा, ऐसा सामान बनाएगा जिसमें आदमी का यूज ज्यादा हो। ठीक है, तो उस तरह से लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो इसीलिए उसको नेशन वन बोल रहे हैं। नेशन टू ऊपर है, एक का मान लीजिए मतलब लेबर ज्यादा है उसके पास, एक के पास कैपिटल ज्यादा है, इसीलिए दो अलग अलग एक्सिस पे है। हम जो बात बोल रहे हैं, देखिए हम बोल रहे हैं जो बात, उसको डायग्रामेटिकली भी समझना है कि आखिर बात यही है कि दो देश ट्रेड कर रहा है। इतना पढ़ाई में क्रक्स क्या है कि दो देश ट्रेड कर रहा है और उस दोनों को जो है एक दूसरे से फायदा हो रहा है। क्रक्स कंक्लूजन यही है, लेकिन उसको बताने का वे है कि सर्टेन एजम्पशंस होगा, ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन डिफरेंस कर इस तरह से होगा। तो अगर पहला ग्राफ में देखेंगे ए और ए डैश पॉइंट, वो लोअर इंडिफरेंस कर्व है, 1 लिखा हुआ है उस ग्राफ के में लिखा हुआ है, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व ऊपर है। तो कह रहा है आफ्टर ट्रेड होने के बाद सेकेंड हायर इंडिफरेंस कर्व पे वो चला जाता है। और नेशन टू देखिए, नेशन टू से नेशन वन सामान खरीद और बिक्री कर रहा है, उसको ये ग्राफिकली समझ रहा है। ऐसा नहीं ग्राफ में सीधे कुछ दिख जाएगा। ठीक है, ग्राफ एक अंडरस्टैंडिंग है और वो इस तरह से बता रहा है कि इस तरह से ट्रेड हो रहा है। अगर आप एक्सिस पे, ऐसा नहीं है ना कि इसमें दो ग्राफ बनाया हुआ है और फिर आपको जो है सारा सामान जो है एक कंट्री प्रोडक्शन करेगा, आपके सामने प्रोडक्शन करके रख देगा, ट्रक लोड करेगा, फिर वो पहुंचाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि उस बात को आपको समझना है कि आखिर बात क्या हो रहा है। ठीक है, अगर वैसा उस बात को रियल में समझना है तो आप कस्टम सर्विस में ज्वाइन कीजिए, और जो बॉर्डर पे ड्यूटी करता है कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट पे या कोई लगेज वाले बॉर्डर पे, तो वो चीज देखिए, तब आपको पता चलेगा कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो रहा है रियल में। वो नहीं समझ में आ रहा है तो पूर्णिया का गुलाब बाग में चले जाइए, वहां सामान कैसे कोई खरीदता है या बेचता है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को ग्राफिकली समझना है। ठीक है, तो उसमें क्या कंफ्यूजन है, दो नेशन आ गया तो नेशन वन नेशन टू दोनों है, दोनों रहेगा तब तो ट्रेड होगा। नाउ इट इज क्लियर, अब समझ में आया। यस तो उसको अपना से यस मेहनत से समझना भी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पूछने का मन आ गया तो कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर पूछिए, लेकिन उसको समझने का भी कोशिश कीजिए अपने से भी। और थोड़ा ग्राफ कॉपी कलम पेंसिल स्केल ये सब रख के फिर बनाइए, और उसका एक्सप्लेनेशन तब अपने से लिखिए आखिर ये क्या हो रहा है, या अपने भाषा में लिखिए जैसे हम बता रहे हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो था डिफरेंट ग्राफ, दोनों एक इसमें एक ही जगह एडजस्ट कर दिया, इसको अलग अलग नीचे ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको करना है। अब देखिए इसमें हम ग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो वो दिखा रहा है कि ए से अब वो बी पॉइंट पे आ जाता है, और वो वहां से बी डैश पे नेशन टू का जो है ये पॉइंट यहाँ है। उसके बाद जब दोनों देखिए जब ट्रेड करेगा तो एक दोनों दोनों सामान बेचेगा ना एक दूसरे को, तो वो इसीलिए वो इधर मूव करता है, वो इधर मूव करता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो ज्यादा जैसे मान लीजिए आपको पेट्रोल का जरूरत था, अचानक मान लीजिए गल्फ पेट्रोल आना बंद हो जाए विदेश से, तो अभी आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, मान लीजिए 5 दिन बंद हो गया तो कितना अफरा तफरी मच जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जब दो नेशन को एक चीज का नीड है, अगर वो नहीं मिलेगा तो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा, अगर वो दोनों मिल गया तो इक्विलिब्रियम में आया, और वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ गया। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पहले पहले मान लीजिए आप लोअर थे, मान लीजिए लोअर इंडिफरेंस कर्व पे थे, फिर आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे गए। जैसे अभी देखिए अभी बीसीए बीबीए और ये सब का निकाल रहा है ना, 10 और 11 जुलाई को प्लेसमेंट का एक ये है। मान लीजिए वो कंपनी आती है, प्लेसमेंट हो जाता है, तो क्या होगा, गेन होगा, आपको जॉब लग जाएगा। तो जब आप जॉब नहीं था और जॉब हो जाएगा तो इंडिफरेंस कर ऊपर शिफ्ट करेगा ना, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल अर्न मोर मनी। उसी तरह से यहाँ कंट्री को समझिए कि एक को एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसी में उसके पास एक ही वस्तु था,
अब जब दोनों वस्तु उसको आयात और निर्यात करने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से दोनों मतलब अपना कमोडिटी को उसने एक्सपोर्ट किया दूसरे कंट्री से, दूसरा कमोडिटी को इंपोर्ट किया, तो उसके पास दो कमोडिटी हो गया, इसलिए वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। ये चीज मैं बेसिकली ग्राफ में समझाने का कोशिश कर रहा था, जो कि अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए आगे ये ग्राफ के बाद उसी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, ये देखिए कि ये जो है, अब जब टेंजेंसी उसी बात को एक्सप्लेनेशन किया है डिटेल में कि ए से डैश पे गया, नेशंस का प्रोडक्शन फ्रंटियर यहाँ है, पीए का प्राइस पीए डैश से जब लेस होगा, तो वो ये बता रहा है किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, और लास्टली जो है ई डैश, ई इज इक्वल टू ई डैश, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। देखिए also to be noted is that point E involves more of Y but less of X than point A. Nevertheless, nation 1 gains from trade because point E is on higher indifference curve 2. Similarly, even though point E dash involves more X but less Y than point A dash, nation 2 is also better off because point E dash is on a higher indifference curve 2. This pattern of specialization in production and trade and consumption will remain the same until there is a change in the underlying demand or supply conditions in commodity and factor markets in either or both nations. अब ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीट का प्रोडक्शन, आपने एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 1000 पैकेट आपने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आपको जरूरत है 300 का ही, तो आप 300 ही रखेंगे ना। तो इसीलिए बोलता है कि पहले एक्स का वो ग्राफ पे उसका वैल्यू ज्यादा था, लेकिन जब ट्रेड करने लगा तो घटा ना। जैसे आपके पास अभी मैंगो का सीजन है, मान लीजिए आपके पास 10 किलो मैंगो है, ठीक है, लेकिन आप 5 किलो मैंगो ही आप अभी कंज्यूम करते हैं, 5 किलो दूसरे फ्रेंड को दे दिए, उससे दूसरा सामान आप ले लिए, तो क्या होगा? ट्रेड गेन होगा ना। तो वही करने का कोशिश कर रहा है कि इवन दो वैल्यू इन्वॉल्व मोर एक्स बट लेस वाई इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो कमोडिटी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच दे रहा है, दूसरा सामान खरीद ले रहा है। इसीलिए जब दो सामान आ जा रहा है तो एक घटेगा एक बढ़ेगा और आपके पास दो वस्तु आ जाएगा, इसीलिए आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे होंगे। याद कीजिए आप पार्ट 1 का समय जब आपको इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया गया था, जैसे मान के चलिए आपके पास एप्पल है और बनाना है, दोनों अगर 4-4 है तो यू विल बी हैप्पी, लेकिन केवल अगर 8 बनाना है, एक भी एप्पल नहीं है, यू विल नॉट बी हैप्पी। आप सोचेंगे 2 फ्रूट्स हो हमारे पास, तो वही सारी बात है कि अगर आप 2 फ्रूट्स लेना चाहेंगे तो उसको कम करना होगा कि 2 बनाना हम दे दें किसी को, फिर वो एप्पल देगा। तो उसी तरह का कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ लगाएंगे कि एक कंट्री के पास अगर एक्सपोर्ट आइटम ज्यादा है तो वो एक्सपोर्ट मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो एक्सपोर्ट करेगा तो वो घट जाएगा, और दूसरा वस्तु इंपोर्ट करेगा तो वो वस्तु बढ़ जाएगा। इसी बात को वहां E इज इक्वल टू ई डैश को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो पॉइंट जो है हायर इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, सो ये जो है, अब देखिए इट इज नाउ इंस्ट्रक्टिव ब्रीफली टू कंपेयर फिगर 5.4 विथ फिगर 3.4। इन फिगर 3.4 द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन फ्रंटियर टू नेशन रिइंफोर्स बाय देयर डिफरेंस इन टेस्ट। अच्छा, वो तो तीसरा चैप्टर की बात कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। हम जो बात कह रहे हैं उसको यहीं पे कॉन्सेंट्रेट रखना है कि E इज इक्वल टू ई डैश जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और उससे दोनों कंट्री को बेनिफिट होगा। ठीक है, सो नोट ऑल्सो दैट हेक्सर-ओहलिन थ्योरी डज नॉट रिक्वायर आइडेंटिकल टेस्ट दैट इज इक्वल indifference curve in the two nations. It only requires that if tests differ, they do not differ sufficiently. उसका थोड़ा सा आलोचनात्मक विवरण है, to neutralize the tendency of different factor endowment and production possibility curve from leading a different relative commodity prices and comparative advantage in the two nations. Thus, in a sense, figure 3.5 can regarded as a moral general illustrations of हेक्सर-ओहलिन मॉडल देन फिगर 5.4। चलिए वो कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे आपकी बात को
वो दूसरा फिगर 3.4 जो है उससे कंपेयर कर रहा है। तो 3.4 अभी हमने आपको बताया नहीं, जब नॉर्मल ट्रेड था जिसमें गेन्स फ्रॉम ट्रेड बता रहे थे दो कंट्री का, उस वो वाले चैप्टर से ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो आइडियली देखिए इसका कंक्लूजन क्या आया। कंक्लूजन ये आया कि आपका जो है हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ये बताता है कि दो कंट्री जो है आपका, यहाँ देखिए assumptions ऑफ द थ्योरी, ये ये वाली बात, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी क्या है, इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिंप्लीफाइंग assumptions सम मेड ओनली इम्प्लिसिटली बाय हेक्सर एंड ओहली। तो दो आदमी मिलके ये थ्योरी दिया, इसीलिए इसका नाम हेक्सर-ओहलिन थ्योरी है। उसका स्पेलिंग याद रखिएगा, HECKSCHER हेक्सर एंड ओहलिन OHLIN, ये दोनों के नाम पे ये थ्योरी का नाम पड़ा। ठीक है, और इसको ये बोलता है कि इट इज बोथ लॉजिकल एंड कन्वीनियंट टू प्रेजेंट देम टुगेदर एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग एट दिस पॉइंट। हाँ बोलिए। हेक्सर एंड ओलिन का मतलब क्या हुआ? दोनों आदमी का नाम है भाई, मतलब ओ। हेक्सर और ओलिन दोनों मिल के दिया। आपका क्या नाम है? अमन कुमार। मान लीजिए अमन और रमन मिल के मान लीजिए दो थ्योरी दिया, तो अमन रमन थ्योरी कहलाएगा। ठीक है, यस। उसी तरह हेक्सर और ओलिन दो आदमी है। ठीक है, उसी के नाम यस। पे ये थ्योरी बना है। ठीक है, इसीलिए नाम बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, कि आप लिख सकते हैं हेक्सर ओहलिन थ्योरी इज गिवन बाय टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट हेक्सर एंड ओहलिन। ओके, जिससे कि आपको उसका स्पेलिंग थोड़ा विदेशी है ना, तो उतना आसान भी नहीं है। देखिए HECKSCHER, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है उसका इंग्लिश में। ठीक है, इंडियन नेम सीधे रहेगा। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं सचिन तेंदुलकर, तो सचिन सिंपली लगता है। वही आप कोई विदेशी का नाम लिखिएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का नाम बोलेंगे तो उसमें बोलेंगे कि थोड़ा अलग लगता है, डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो डिफिकल्ट की बात नहीं है, हम चूंकि यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो हेक्सर एंड ओहलिन बोथ आर फॉरेन इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने ये थ्योरी दिया। ठीक है, इस तरह से इसको आप रिवाइज कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको गेन्स ऑफ ट्रेड का भी अगर क्वेश्चन आएगा उसमें भी हेल्प करेगा कि दो कंट्री आखिरी इंटरनेशनल ट्रेड करके कैसे गेन करता है। तो आप बता सकते हैं कि दो कंट्री अलग अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके एक उस तरह से गेन करता है, और एक वस्तु जो ज्यादा है वो एक्सपोर्ट कर देता है, और जो कम है वो इंपोर्ट करके दोनों जो है हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है। इस तरह से उसको गेन होता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? अभी इस ग्रुप में आप अभी लोग नहीं है उसमें नहीं है आप लोग? एक जो सर, टीचर शायद वो टीचर्स का है। वो केवल टीचर का है। ओके ओके, तो अभिषेक आनंद, अमन, अजहर राजा, जागृति, जयसा, कीर्ति कुमारी, मोहित कर्ण, नम्मी, शिवम कुमार, इतने लोग पढ़